Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the Cold War era, and under this chapter we have discussed about the impact of the Second World War, the emergence of the two superpowers, the devastation of Europe, and then we have also discussed about the rivalry which was existing between these two superpowers, and this rivalry led to the Cold War, है ना? And we have also discussed about the impact of using the nuclear bomb in the end of the Second World War. Because of this use of nuclear weapon, what became important, what became vital for the survival of the humanity, that there should not be Third World War. Because if Third World War happens, then that will be we can say that will that can cause end of humanity, because the devastating effect of the Third World War will be so high that it can cause end of the whole humankind. So this is the reason we can justify the Cold War. If Cold War is there, then what is happening, that rivalry is existing but without much casualty. In spite of Cold War, we will see in our discussion, we will see that in spite of Cold War, shooting wars were happening in different parts of the world, and in these shooting wars casualties were also happening, but the scale of loss of property, the scale of loss of lives were very small if we compare it with the effect of the World War, है ना? तो इस हिसाब से, because of this, we can say that Cold War is justified. Cold War अगर हुआ तो अच्छा था, क्योंकि Cold War के कारण कैजुअलिटी कम हुई, लॉस ऑफ लाइफ्स कम हुए, ठीक है. And in this discussion we have explained the logic of deterrence. The superpowers were having this deterrence relationship between themselves. So according to this logic of deterrence, what was important for the superpowers to gain power as much as possible, to stop the nuclear weapons as much as possible, become so much powerful that anyone cannot think of attacking the country, है ना? इतने पावरफुल बन जाओ, इतने अपने वेपन्स जमा कर लो, इतने पावरफुल हो जाओ कि कोई अटैक करने की सोचे ही नहीं, अटैक की नौबत ही ना आए, उस वहाँ तक पहुँचना ही नहीं. Because the stockpile of nuclear weapon is so high that no country, not the other superpower, has the courage to attack. This is logic of deterrence. कि rivalry है ना? तो अटैक तो होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. अगर अटैक हो गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाएगी, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पे ही खतरा आ जाएगा. तो वो नहीं करना है ना? वहाँ तक नहीं पहुँचना है. हमको ये करना है कि अपने पास इतने पावरफुल वेपन्स का जो स्टॉक है उतना ज़्यादा बढ़ा लो कि कोई तुम पे अटैक करने की सोचे ही ना. बस नाम ही काफ़ी है, जो कहते हैं ना, वो चीज़. तो दैट इज़ logic of deterrence. We have discussed about it in the previous class, and now today we will discuss one of the most important military feature of the Cold War. ये मिलिट्री फीचर, व्हाट डू यू मीन बाय मिलिट्री फीचर? जो कोल्ड वॉर हो रहा था, जिसमें सुपर पावर्स के बीच में राइवलरी एग्जिस्ट कर रही थी, इसका मिलिट्री फीचर क्या था? मिलिट्री फीचर जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि जो सुपर पावर्स थे, दे बिहेव्ड इन अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्ट्रिक्टेड मैनर. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल मैनर? रिस्पॉन्सिबल, क्या चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पर?
What is the responsibility upon the superpowers? The responsibility is to maintain world peace so that human lives can be saved. ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कि दुनिया में शांति को बनाए रखना है ताकि लोगों की जान न जाए, थर्ड वर्ल्ड को होने से रोकना है. क्या है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर, टू अवॉइड एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड ऑफ ह्यूमन काइंड, उसको रोकना है. ये है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो कैसे बिहेव करते हैं? दे बिहेव इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैनर. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर करते हैं. they take very much care of this, that they both the superpowers should not come in direct conflict with each other. There should not be direct conflict. Conflict है, competition है, rivalry है, but direct confrontation नहीं होना चाहिए, because if they come in direct confrontation then it will lead to third world war. और थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना है, क्योंकि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो उसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज होना बिल्कुल अनएवॉइडेबल है, होना ही होना है वो. बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जब न्यूक्लियर वेपन यूज हो गया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो न्यूक्लियर वेपन यूज होगा ही होगा. और जब न्यूक्लियर वेपन अगर स्टार्टिंग से ही थर्ड वर्ल्ड वॉर में यूज होना है, और जैसा कि आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि उस समय जो 1945 में न्यूक्लियर वेपन यूज किया उसकी जो डिस्ट्रक्शन का जो कैपेसिटी था उससे कहीं ज्यादा, बहुत 1000 टाइम्स ज्यादा अब डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुके थे, थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स 1950s में यूएसएसआर दोनों ने बना लिया था. तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो इसके लिए इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि दे शुड बिहेव इन अ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैनर. उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने की, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन काइंड के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की, उनके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर. ठीक है, और इसलिए उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया. इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, है ना. यू विल सी दैट इट इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. योर चैप्टर स्टार्ट्स विथ दिस इंसिडेंट ओनली, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एंड फ्रॉम दिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द सुपर पावर्स बिहेव्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्ट्रिक्टेड मैनर. ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ क्यूबा. क्यूबा कहाँ पर है ना, क्यूबा की लोकेशन क्या है. तो यू विल सी कि क्यूबा जो है वो बिल्कुल अमेरिका के नेबरहुड में पड़ता है. ठीक है, और नेबरहुड में है तो जैसे कि जो यूएसए है उसका जो कोस्ट है, उसका जो समुद्री किनारा है, वहां पर एक छोटा सा आइलैंड है. इट्स अ आइलैंड, है ना. और ये जो आइलैंड है ये बिल्कुल अमेरिका के समुद्री किनारे के पास में है, और ये बहुत ही छोटा कंट्री है, बहुत छोटा कंट्री है. अगर हम इसकी टेरिटरी को देखें तो ये एक बहुत ही स्मॉल कंट्री है. ठीक है, ये लोकेशन हुआ, लोकेशन एकदम यूएस के पास है. अब हम क्यूबा में था क्या, क्यूबा में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? क्यूबा में सोशलिज्म था. ठीक है, अब ये जो सोशलिज्म क्यूबा में था इसमें who was the leader, who was the president of this Cuba? The president was Fidel Castro. ओके, तो यहाँ पर क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो जो थे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे.
So as I told you, socialism or communism both are same. Though there is a difference between the two, but at this level you don't need to go in those details. For you, socialism and communism is same. ठीक है. तो फिडेल कास्ट्रो का रूल था यहाँ पर क्यूबा में, जो बहुत ही छोटी सी कंट्री यूएस के नेबरहुड में थी, आइलैंड कंट्री थी. अब क्या हुआ कि ये कम्युनिस्ट था और इस समय कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है. कोल्ड वॉर के बाद की बात हम कर रहे हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. तो ये जो था, ये क्यूबा, इट वॉज एन अलाई ऑफ यूएसएसआर. ये यूएसएसआर का साथी था, है ना, यूएसएसआर के साथ था ये. ओके. अब यूएसएसआर को ये एक डर मन में आया जब ये 1961 की बात है. ठीक है. यूएसएसआर के मन में ये बात आया कि ऐसा न हो कि क्यूबा को जो ये है अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस में ले ले. ठीक है. इस तरह का जो डर था वो यूएसएसआर के दिमाग में आता है. दे वर वरिड कि क्यूबा को अटैक कर लेगा अमेरिका, क्योंकि क्यूबा एक बहुत छोटी सी कंट्री है. अमेरिका अटैक करके क्यूबा को अपने हिसाब से वहाँ पर फिर कैपिटलिज्म ले आएगा और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर देगा. तो इस तरह का जो डर था वो यूएसएसआर के लीडर्स के मन में आ गया. और जब ऐसा डर आया यूएसएसआर के लीडर्स के दिमाग में, ये डर आना शुरू हो गया अप्रैल 1961 से. ठीक है. अप्रैल 1961 से ये डर आना स्टार्ट हो जाता है. और जब भी हमारे मन में क्या है, कुछ भी किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी आती है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं कि कैसे उस इनसिक्योरिटी को हम ख़त्म करें, है ना. कैसे ये जो डर लग रहा है कि क्यूबा पर वो अटैक कर देगा, वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल का खात्मा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या किया जाए. इसके लिए यूएसएसआर में जो उस समय वहाँ के हेड थे, ही वॉज निकिता क्रूश्चेव. ठीक है. यूएसएसआर में निकिता क्रूश्चेव जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्या किया जाए कि क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया जाए. रशियन बेस मतलब जो क्यूबा की टेरिटरी है उसको रसिया अपने मिलिट्री बेस की तरह से यूज करे. वहाँ पर वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको वहाँ पर वो इंस्टॉल करे. ठीक है. जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, उनको वहाँ पर वो इंस्टॉल करे. इससे क्या होगा कि ये जो डर आ रहा है कि अमेरिका उस पर अटैक कर सकता है, ये डर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि हम वहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस बना लेंगे, हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स वहाँ पे मौजूद रहेंगे. और जब न्यूक्लियर मिसाइल अगर यूएसएसआर वहाँ पे डालता है तो इसका क्या नतीजा होगा कि जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं ना, उसका एक रेंज होता है. न्यूक्लियर मिसाइल्स का एक रेंज होता है कि कहाँ तक वो रीच कर सकता है. ठीक है. तो एज आई टोल्ड यू, लोकेशन ऑफ क्यूबा, वो क्यूबा जो था वो यूएसए के नेबरहुड में था. तो अगर वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल रख दिया जाता है तो उस न्यूक्लियर मिसाइल के रेंज में क्या होता कि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी अमेरिका आ जाती. तो जब ये अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए यूएसएसआर ने क्या किया कि क्यूबा को मिलिट्री बेस बनाने का डिसाइड कर लेता है. और 1962 में क्या करते हैं, यूएसएसआर के निकिता क्रूश्चेव की तरफ से ये पहल की जाती है कि वो न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं उसको वहाँ पर प्लेस करना, क्यूबा में प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस तरह से जब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है
तो अब इस न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड वेपन्स के इंस्टॉलेशन अगर क्यूबा में हो रही है तो उसकी वजह से अमेरिका की सिक्योरिटी पूरी तरह अब थ्रेट में आ गई। तो इसका क्या नतीजा होगा अगर आप इस तरह से अमेरिका के बिल्कुल जो पास में कंट्री है वहाँ पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका की सिक्योरिटी ही खतरे में पड़ जाएगी। So this USSR has started installing nuclear weapons in Cuba और उसका काम चल रहा था एंड अमेरिका वॉज नॉट अवेयर कि ऐसा हो रहा है। ये इस बात की जानकारी अमेरिका को 3 वीक्स तक नहीं लगी। 3 वीक्स तक अमेरिका वॉज अनअवेयर कि ऐसा हो रहा है, बट आफ्टर 3 वीक्स जो था अमेरिका को ये पता लग जाता है कि ये हो रहा है। एंड देन व्हाट वाज डन बाय अमेरिका दैट उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट। यूएसएसआर में कौन थे और यूएसए में कौन थे? यूएसएसआर में निकिता क्रुश्चेव और यूएसए में जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, अब ये जो जॉन एफ कैनेडी थे, इन्होंने क्या डिसीजन लिया? काम तो बहुत गलत हो रहा था। पूरा का पूरा जो यूएस है वो अब यूएसएसआर के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनके रेंज में आ चुका था। यूएस की पूरी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन हो चुकी थी। तो अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा आ गया। और जॉन एफ कैनेडी जो थे उन्होंने अपने एडवाइजर्स से बातचीत की और ये समझ में आया कि किसी भी तरह का फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर नहीं करना है हमें। ठीक है, क्योंकि जो जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर उसमें हम थोड़ा भी रिटेलिएट करते हैं ओपनली डायरेक्टली, तो इट कैन लीड टू न्यूक्लियर वॉर, फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन वो हमको नहीं करना है। इस बात के लिए बिल्कुल 100% वो अवेयर थे कि नहीं, उन्हें नहीं करना, बिकॉज दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो इसलिए हमको डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। लेकिन अमेरिका की सिक्योरिटी को भी तो इंश्योर करना है और ये भी तो जरूरी है कि किसी तरह से ख्रुश्चेव पर इस बात के लिए उस पर प्रेशर डाली जाए कि वो जो मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ रखे हैं उसको यहाँ से हटाए, है ना। अगर वो ये न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स नहीं हटाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो यूएस की जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड ही रहेगी। तो वर्ल्ड पीस को भी मेंटेन करना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी नहीं होने देना है और अमेरिका को खुद की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। तो इसलिए क्या किया जाए? डायरेक्ट वॉर में अगर आ गए तो फिर तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो इसको रोकना होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं करना है, लेकिन उसको रोकना भी जरूरी है। जो उसने इंस्टॉल किया है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स, उनको हटवाना भी जरूरी है। तो कैनेडी ने क्या ऑर्डर किया अमेरिका के वॉरशिप्स को कि जो सोवियत के शिप्स आ रहे हैं टुवर्ड्स क्यूबा, क्यूबा की तरफ जो सोवियत शिप्स आ रहे हैं, उनको उनके रास्ते के बीच में आप बसा जाइए। अपनी डायरेक्शन को, जो यूएस के वॉरशिप है वो अपना डायरेक्शन उसी तरफ कर ले जिधर से यूएसएसआर की वॉरशिप आ रही है। ठीक है, इधर से यूएसएसआर की आ रही है और इधर अमेरिका की वॉरशिप है, वो बस उसके सामने आ जाए, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये दिस वाज ऑर्डर्ड बाय जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने कहा कि अमेरिकन वॉरशिप जो है वो इंटरसेप्ट करे, उसके रास्ते को रोक ले, जिससे वो यूएसएसआर को ये समझ में आ जाए कि अमेरिका इज नाउ अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट इज इन अ वे इट इज स्टॉपिंग सोवियत यूनियन टू डू दिस, क्योंकि उसने अपने वॉरशिप को क्या किया है कि ऐसे ऑर्डर कर दिया कि वो उसके सामने आ जाए, मतलब हम आपका रास्ता रोक रहे हैं। अब ये ऑल दीज आर हैपनिंग इन अ वेरी इंडिकेटिव मैनर, इंडिकेशंस ऐसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सिचुएशन होता है। अब इसमें
यूएसए ने तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया कि कोई भी डायरेक्ट न करके बस वॉरशिप को कहा कि उसके सामने कर दो। अब दूसरा जो बिहेवियर यूएसएसआर का जो रिस्पॉन्स हुआ, जब उसकी वॉरशिप जा रही है और उधर सामने से उसको अमेरिका के वॉरशिप नजर आ रहा है, तो यूएसएसआर का क्या बिहेवियर था, क्या रिस्पॉन्स था? यूएसएसआर का रिस्पॉन्स यही था कि उसको ये समझ में आ गया कि अमेरिका जान चुका है, अमेरिका रोक रहा है, और वो रुक गया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ये बता रहा है कि यूएसएसआर जो है वो उसने भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया, क्योंकि जिस समय उसको समझ में आया कि अमेरिका उसे रोक रहा है, वो रुक गया। अगर वो नहीं रुकता, वो चलता जाता, तो क्या होता? तब तो फिर डायरेक्ट वॉर होना ही था, उसको तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता था। तो दोनों सुपर पावर्स ने इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के क्रम में क्या किया कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर किया। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री फीचर ऑफ द कोल्ड वॉर एरा में जो मिलिट्री फीचर था वो यही मिलिट्री फीचर था कि दोनों ही सुपर पावर्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर करते थे, क्योंकि दोनों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं होना है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, किसी भी तरह से इस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को रोक के रखना है, ताकि ह्यूमैनिटी को जो लॉस हो सकता है उस लॉस से बचाया जा सके। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल था जबकि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रिक्टेड मैनर में बिहेव करते। ठीक है, तो दिस इज द मिलिट्री फीचर ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। अब इसमें एक और चीज़ हमें पढ़नी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट तो है ही साथ इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एज वेल, है ना। और वो क्या है कि जब कोल्ड वॉर हो रहा है, वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सुपर पावर्स हम देख रहे हैं, ये दोनों सुपर पावर्स जो हैं, इनके बीच में जो लड़ाई थी वो लड़ाई आइडियोलॉजी की थी। आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, बट वी कांट से कि इट वाज ओनली अबाउट आइडियोलॉजी। एक्चुअली इट वाज द स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, आइडियोलॉजी जो होती है ना, वो हमेशा एक आउटर कवरिंग होती है हमारे ऊपर, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हम चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये समझ में आएगा कि आइडियोलॉजी वॉज इम्पॉर्टेंट, बट इट वॉज नॉट एवरीथिंग। It's not कि only because of opposite ideology Cold War was there. Actually, it was a war of influence. It was a war of power. कि कैसे ज़्यादा पावरफुल बनना है। ठीक है, तो ये जो दोनों सुपर पावर्स हैं, इनके बीच में इन्फ्लुएंस की लड़ाई थी, पावर की लड़ाई थी। अब हम ज़्यादा पावरफुल होंगे, ये कैसे हमें पता, हम कैसे दुनिया को बताएंगे कि आई एम मोर पावरफुल देन द अदर सुपर पावर। इसके लिए हमको दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि द नंबर ऑफ कंट्रीज विच आर फॉलोइंग मी इज मोर देन द नंबर ऑफ कंट्रीज विच आर फॉलोइंग द अदर सुपर पावर्स। अगर कहीं भी सपोज हमारी लोकेलिटी में या एनीवेयर, घर में भी कई बार होता है, ग्रुपिज्म हो जाता है, फ्रेंड्स के बीच में ग्रुपिज्म होता है। तो ग्रुपिज्म हो गया मान लो, जिसमें कि 2 लोग बहुत इन्फ्लुएंस वाले हैं। इन्फ्लुएंस किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं, किसी भी हिसाब से 2 लोग जो हैं वो बिल्कुल बराबर की पोजीशन में, और उनके बीच में आपस में नहीं बनती है। तो वो दोनों क्या चाहेंगे कि एक दूसरे को दिखाएंगे कि नहीं हम ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा दिखाएगा हम ज़्यादा पावरफुल है। और इस ये दिखाने के चक्कर में एक्चुअली क्या होगा कि वो ये चाहेंगे कि जितने लोग हैं उनके आसपास, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको फॉलो करें, है ना। सपोज एक क्लास के अंदर ही इस तरह का ग्रुप बन सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के ग्रुप बन सकते हैं। 2 लोग हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम पावर है जिनके पास, अब दोनों के बीच में पावर की लड़ाई है। इस पावर की लड़ाई में, दोनों के बीच में जो पावर की लड़ाई है, उसमें वो कैसे अपने आप को विनर या अपने आप को डोमिनेंट कैसे प्रूव करेंगे? बाय नंबर ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग देम, है ना। सपोज A और B 2 लोग हैं, दोनों ही पावरफुल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन में 60 पीपल आते हैं। ठीक है,
अब अगर एक के पास 45 लोग हैं, एक जने ए जो है, इनके पास 45 पीपल आर विथ ए, ओके, और इनके पास 15 पीपल है, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? ए, क्योंकि उसके साथ ज्यादा लोग हैं। बी विल बी लेस पावरफुल। देखने से तो यही समझ में आएगा, है ना। हो सकता है कि जो 15 लोग हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिस भी बेसिस पे ये ग्रुप बना है उसमें ये 15 लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो हो सकता है वो छोटा ग्रुप है पावरफुल हो सकता है। बट नॉर्मली इन जनरल हम नंबर से ही काउंट करते हैं कि अगर नंबर ज्यादा है तो वो ज्यादा पावरफुल है, नंबर कम है तो वो कम पावरफुल है। तो ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें ये लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ा कि इसमें दोनों सुपर पावर्स ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इनका एफर्ट होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में ले ले। और ये जो इनका एफर्ट था इसके लिए सब कुछ हो जाता था, मिलिट्री इंटरवेंशंस तक हो जाते थे बहुत सारे, मतलब दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन ऑर्डर टू मेक मोर एंड मोर कंट्रीज इन देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये होता था, दोनों सुपर पावर से ज़्यादा कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लेने का एफर्ट करते थे। ठीक है, और इसी दौरान क्या हुआ कि जो ये स्टार्टिंग हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में लिया जाए, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स विथ यूरोप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यूरोप जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप। अब जो वेस्टर्न यूरोप था वो किसके साथ हो गया? वो यूएस के साथ हो गया। और जो ईस्टर्न यूरोप था वो किसके साथ हो गया? वो यूएसएसआर के साथ हो गया। तो इस तरह से वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप्स में या दो ब्लॉक्स में बढ़ता हुआ नजर आता है। कोल्ड वॉर के स्टार्टिंग के साथ ही पूरी दुनिया जो है वो दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में, दो भाग में, दो समूह में बढ़ती हुई नजर आती है। और ये जो बंटने का जो काम होता है दैट स्टार्ट्स विथ यूरोप। यूरोप में वेस्टर्न यूरोप इज विथ यूएस एंड ईस्टर्न यूरोप इज विथ यूएसएसआर। ठीक है, अब इसी में ये जो बंट रहा है ये किस बेसिस पे बंट रहा है, किस तरीके से, अगर हम मतलब प्रैक्टिकली देखें तो कैसे ये ब्लॉक्स बन रहे थे, प्रैक्टिकली कैसे ये ब्लॉक्स बन रहे थे? These blocks were created through military alliances. अब ये मिलिट्री अलायंस क्या है? मिलिट्री अलायंसेस हैं, अलायंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसको हम अलायंस कहते हैं। तो बहुत सारे जो कंट्रीज का एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और ये किस बेसिस पे है? मिलिट्री बेसिस पे। तो मिलिट्री अलायंस में क्या होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं अपनी मर्जी से वॉलेंटरली दे साइन अ ट्रीटी। ठीक है, एक ट्रीटी पे वो साइन करते हैं, और जो जिस ट्रीटी पे वो साइन करते हैं उस ट्रीटी में हम क्या देखते हैं, क्या क्या मेंशन होता है? उस ट्रीटी में ये होता है कि ये बताया जाता है कि हम जो लोग भी इस ट्रीटी पे साइन कर रहे हैं उन सबका कॉमन एनिमी जो है वो एक ही है। सबका कॉमन एनिमी एक है। ठीक है, ट्रीटी में इन बातों की जिक्र होती है कि उनका एक कॉमन एनिमी है। इसके अलावा ये भी होता है कि अगर हम मिलिट्री अलायंस किए हैं किसी के साथ, तो इसमें यह होता है कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक कोई भी कंट्री करती है तो दैट अटैक विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज हु आर पार्ट ऑफ दैट ट्रीटी। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि इफ यू हैव साइंड अ ट्रीटी विथ यूएसए देन you cannot sign another treaty with USSR. It means कि this separation or this groupism is totally tight groupism. आप ये नहीं कर सकते कि आप एक साथ दोनों ग्रुप में हैं. No, you can't do this.
या तो आपको एक ही को चूज करना है, या तो इस ग्रुप को या उस ग्रुप को। यूएसए को चूज करिए या यूएसएसआर को चूज करिए। यू कैन नॉट कि हम इसको भी ले लिए उसको भी ले लिए। ये था मिलिट्री अलायंस। तो कॉमन एनिमी होता है एंड अटैक ऑन एनी वन कंट्री was considered as attack on all the countries who are part of treaty. ठीक है। और तीसरी चीज जो अभी हमने डिस्कस किया कि इफ यू आर if a country, not you are, if a country is with US, then it cannot be with USSR. अगर आप यूएसए के एंड वाइस वर्सा, अगर आप यूएसए के साथ हैं तो आप यूएसएसआर के साथ नहीं हो सकते हैं, अगर आप यूएसएसआर के साथ हैं तो आप यूएसए के साथ नहीं हो सकते हैं। तो दीज आर द मिलिट्री अलायंसेस। ये मिलिट्री अलायंस इस तरह से होते थे। कौन कौन से मिलिट्री अलायंसेस हुए थे, क्या हुआ था, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास।